Last class we did chemical equation balancing. Our chapter starts from here. Okay, so we'll be reading about reactions first, and then some facets of reaction, then types of reaction. This is all the chapter all about. Okay, so our topic today, and as we start our discussion, will be on chemical reactions. थोड़ा डिटेल में पढ़ाएंगे. And now maybe I will touch things which are not there in your NCERT book also, and some things we will touch in such a manner that they will be from the next chapters. यहाँ से कुछ ऐसे चीजें होंगे which will not be restricted only to this chapter. That animal you can say will show its face here. Acid basis में भी दिखेगा, metal and non-metal में भी दिखेगा. तो यहाँ से we'll try to get ourselves accustomed with that animal. वहाँ भी देखेंगे एक बार, ठीक है? Now, in order to understand chemical reaction, as I told you that whenever a change happens, we have physical change and chemical change. So I would be talking more about chemical change. Okay, so what is a chemical change? A chemical change is one in which new substances with new properties are formed. ठीक है, chemical change होने से बन जाता है new substance and new properties. And usually you cannot reverse a chemical change by normal process. For example, you've got milk, right? Milk stale हो गया और मिल्क का कर्ड बन जाना. कर्ड को आप दोबारा मिल्क नहीं बना सकते. इफ यू वांट टू इंक्रीज द फैन बाय 1 point, प्लीज डू इट. सो द मिल्क हैज बिकम कर्ड. कर्ड कैन नॉट बिकम मिल्क अगेन. दिस इज नोन एज अ केमिकल चेंज. You had what is it? You created atta dough, and from atta dough you have press 3 beta 2 3 you press. What is the problem? 3 is the slowest, 1 is the fastest. Yeah, 1 will be fastest, 2 is the medium one. Okay, now if you make an atta dough, okay, and if you bake it into a chapati, that's a chemical reaction. Chapati फिर से atta dough नहीं बन सकता है. Have you understood? But if you snip a paper into many pieces, paper is still paper. Water, if you are adding taking water in the form of ice and you add heat to it, it melts and it forms what? Water. Further heat, it will form water vapor. So these are all physical changes. So in a physical change, heat exchange will be there. In physical change also heat exchange takes place. In some चीजों में बहुत debate करेंगे, because nowadays you have to expect lot of questions from case study based question. Unless your concept is clear, you will not be able to answer. So in physical changes, heat interaction will be there, but that heat interaction will be very less. हाँ बेटा. Sir, what about cutting of paper? Cutting of paper is a physical change. Papers still remain papers, no matter how so. You said heat interaction takes place. Heat interaction, cutting off. I'm saying heat interaction may also be a part. Why? In a physical change, heat interaction may be a part. In chemical changes, heat interaction will be there. Whenever a chemical change happens, heat is a part of it. होगा ही होगा. Heat, or rather in the other word we can say energy. Energy interaction mandatorily has to happen. This energy can be in the form of heat. This energy can be in the form of light, or this energy can also be in the form of sound. Hoga hi hoga. Have you understood? But in physical change also, heat interaction may be there. That does not mean that heat interaction does not happen in physical change. Heat interaction physical change में भी होता है. लेकिन the quantity of heat interaction in a chemical change is much more significant. Is this clear now? And heat means, see, why do we take everything in the name of heat? End of the day, when a chemical reaction takes place, it's all about chemicals. These chemicals have got an energy which is stored in their atoms, which is known as the chemical energy. Now this chemical energy, suppose किसी bond को आपको तोड़ना है, so you have to supply more energy. So when we supply energy or we release energy, suppose a reaction is releasing energy, chemical energy will be released in the form of heat. Heat will be seen more. That's why if you go to say Cambridge and other syllabus, they have another chapters dedicated called chemical energetics. End of the day, the energy release or the energy absorption always happens primarily in the form of heat. ये clear है आपको? और जो एनर्जी एक रिएक्शन के अंदर जाता है वो है केमिकल एनर्जी, लेकिन जाने का जरिया क्या है? हीट एनर्जी. निकलने का जरिया भी क्या है? हीट एनर्जी. इसके लिए जब आप 11 में जाएंगे, you will continuously hear heat of reaction. What is the heat of reaction? You will be calculating heat of reaction. Light of reaction कोई calculate नहीं करेगा, ना ही एनर्जी.
So whenever energy transaction is associated with a chemical reaction, बार बार reaction क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मैं chemical change ही पढ़ने वाला हूँ. मुझे physical change से इस chapter में कोई मतलब नहीं है. Have we understood? So question arises that why does this chemical change take place? ये chemical change होता क्यों है? अगर why पूछे तो उसका आंसर है ये. Chemical reactions take place due to which chemical change takes place. Then second question arises, why does chemical reactions at all take place? End of the day, remember, in nature, everything would like to come to something called stability. And stability is always achieved by lower state of energy. Everything wants to come to stability. Now, you may say, sir, I have one sack of coal kept in the balcony that is in stable state right now. However, if you give a lot of energy, it starts becoming unstable. So it cannot remain no more in coal state. So it starts burning and oxygen is present in the atmosphere. So it starts reacting with oxygen and then forms another new product with new property, which is called carbon dioxide. पहले मैं solid था, black solid, I became a gas. I became stable and I released a lot of energy. उसी से आपने खाना बनाया. Are you understanding? This is our main topic on which we will be hovering around. So, what happened? Okay, sorry. So, chemical changes need chemical reactions to happen. Our chapter is all about chemical reactions. So, what are chemical reactions? Chemical reactions are processes which are responsible for making chemical changes. And what is chemical change? A change which brings about a new substance with new properties. Parental properties are no more inherited. Right. Now, when a chemical reaction takes place, so let's say this is my chemical reaction. ठीक है ना? तो this chemical reaction I said कि ये एक तरह का process है. पहले mind map से समझते हैं इस चीज को. ये एक तरह का process है. मतलब इस process के before भी कुछ है और after भी कुछ है. तो there is something happening on this side and there is something happening on this side. This part we have understood. That इस part में क्या हो जाएगा? इस part में हो जाएगा एक chemical change. And blah blah blah, new substance, new properties हो जाएगा, है ना? Then what? This is a process. It's something like feeder. गन्ना जैसा है. यहाँ से शुगर केन धकेलेंगे, वहां से जूस निकलेगा. तो यहाँ से आपने क्या धकेला? यहाँ से जो भी आप धकेलते हैं, that is known as reactants. Reactants are participants in this process. Reactants are the chemicals. Can be elements or can be compounds or can be combination of both, which take part in a chemical reaction. ठीक है ना? ये reactants इस chemical reaction में part लेंगे. यही वो parents हैं और इनके offsprings बनेंगे इस side में, जिनका नाम होगा products. And these products are the one which will have with the new substances with new properties. Have you understood? And when this chemical reaction takes place, there has to be certain conditions. हर वक्त ऐसे ही नहीं हो जाएगा. Some reactions may be very spontaneous. Go to a chemistry lab and you see a bottle of kerosene in which sodium is kept. The moment you take out sodium, it will react vigorously. Or if there is any sodium salt rich in sodium, और आपने इसको wash sink में फेंक दिया ना, पड़ाक से आग आ जाएगा. Or if you watch the new, I don't know, in our once upon a time CID was a very interesting thing. Now CID is on Netflix also. So some episodes are there where they will show that the other day I was watching, a girl is wearing a blazer and right on her, the boy just touches the girl's blazer and immediately it is catching fire. Later they showed that it has got sodium and he has got water in his hand. छूते ही. So, sodium is highly reactive. Okay, so sodium को हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन के कांटेक्ट में लाते नहीं, वो spontaneous reaction है. तो हमारे पास कुछ conditions भी होने चाहिए ये reactions होने के लिए. These conditions are usually will be categorized by, these are called macro properties. जब आप 11 में जाएंगे इन्हें हम कहते हैं macro properties, बड़े बड़े property. इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा ना, माइक्रो मैक्रो. माइक्रो न्यूट्रिएंट जो आप खाने में थोड़ा सा खाते हैं, मिनरल्स, इतना बड़ा लोहा चबाते हो क्या? मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, इतना कार्बोहाइड्रेट खाते हैं. तो ये है मैक्रो प्रॉपर्टीज. द मैक्रो प्रॉपर्टीज आर टेम्परेचर, प्रेशर. ये दोनों हमारे लिए बहुत जरूरी होते हैं. किस टेम्परेचर में ये रिएक्शन होगा, किस प्रेशर में होगा. एंड हाउ टू अंडरस्टैंड? द वेरी कॉमन एग्जांपल, द सैक ऑफ कोल व्हिच इज लाइंग ऑन माय balcony doesn't catch fire immediately. A certain amount of temperature has to be given, then only it will catch fire. In grade 11 you will read about something called activation energy.
A reaction may give me energy, combustion reaction, fuels give us lot of energy. पर पेट्रोल अपने आप थोड़ी आग लगता है, उसको आग लगाना पड़ता है, पर एक बार जो लग गया, he will give me lot of energy. So we have to supply energy. That in higher classes we'll learn that as activation energy, the minimum energy required to activate a reaction. तो ये concepts clear रखिए. When we do second round revisions, I won't talk these. I will be talking typically NCERT only. But now we are talking in such a manner that in grade 11 this chapter से आप सीखोगे the chapter of chemical bonding, थोड़ा सा सीखने आएगा. Then in grade 11 you'll read about chemical energetics, chemical kinetics. ये सारा इसी से आता है, ठीक है? So there will be temperature, pressure, and we will have one more item out here, which we will later see, which is known as catalyst. Catalyst कौन होता है? ऐसे जान के रखते हैं. Catalyst is someone who will not participate in the reaction, but will speed up the reaction. वो participate नहीं करेगा. When we were at school level, they used to teach catalyst as a catalyst is somebody who alters the rate. मतलब slow भी कर सकता है, fast भी कर सकता है. आजकल ऐसा नहीं पढ़ते हैं. Catalyst मतलब वो reaction को हमेशा speed कराएगा. और सर ऐसा कोई है जो रिएक्शन को स्लो कराएगा? हाँ, ऐसा भी कोई है, उसको हम कहते हैं इनहिबिटर. ये सब जानिए. इनहिबिटर इज समवन हु स्लोज डाउन द रिएक्शन. फॉर एग्जांपल, द सलाइवा दैट यू हैव इन योर माउथ, इट्स एन एंजाइम, सलाइवरी एमाइलेज. सलाइवा है बोल के आपको 4 घंटे में खाना हजम होता है. इट इज अ कैटलिस्ट. आई विश देयर वाज नो सलाइवा. मेरे जैसे लोग मोटे ही नहीं होते, भूख ही नहीं लगता. If saliva was not there, the same food would have taken 20 hours to digest. So catalyst is somebody like if you have a sibling at home and you are being scolded by your parent, that sibling plays that role. कल ना वो बस स्टैंड में भी बदमाशी कर रहा था बोल के चला जाएगा और 2 डोज गिर रहे हैं तुमको. वो खुद पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, लेकिन तो कैटलिस्ट we will be seeing in organic chemistry here, बाकी सब जगह में देखेंगे. So these reactions take place in a process where you need certain temperature, pressure. इनको हम conditions के अंदर में पढ़ते हैं. कुछ catalyst की भी जरूरत होती है और फिर ये reaction होता है जहाँ reactants products में तब्दील हो जाते हैं. And these are new substances. अच्छा, ऐसा जब होता है, एक और चीज जो हमें जानना चाहिए, these reactants में भी, reactants कौन कौन है बेटा? reactant element भी हो सकता है, reactant compound भी हो सकता है, reactant दोनों मिलके भी हो सकता है. राइट. तो एलिमेंट और कंपाउंड मतलब यहाँ पे कुछ एटम्स हैं, है ना? यहाँ पे कुछ एटम्स है, इतना तो हमें पता चला. लाइक से वी आर यूजिंग से C+O2. C में C एटम्स है, O2 इज अ मॉलिक्यूल, उसमें O एटम्स है. दीज एटम्स जब इस साइड में प्रोडक्ट बनते हैं, एटम्स डू नॉट चेंज. ये याद रखिए, ऑक्सीजन कभी भी नाइट्रोजन नहीं बन सकता है. ओनली दे गेट rearranged. Acha, so are there processes in which the atoms change? Yes, nuclear reactions. वहां पे एटम का ही मतलब आया था मैं कुछ बन के, वो लाइक मारीच मृग बन गया, डियर बन गया सीता के सामने, वो होता है. यहाँ पे ये सब नहीं हो सकता है. यहाँ पे सिर्फ आप रीअरेंज कर सकते हो. बोलो ये स्टेप क्लियर हुआ? So what are chemical reactions? Chemical reactions are the processes in which new substances with new properties are formed. They are actually the reason why a chemical change takes place. And in a chemical change, there is always an interaction of energy in the form of heat, light, and electricity. Heat, light, and sound. It will be exchanged. Chemical changes usually cannot be reversed by normal process. मतलब heating, boiling ऐसे करने से reverse नहीं कर सकते. Right. Now, a chemical reaction involves reactants and involves products. इसी का जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है वो है केमिकल इक्वेशन. केमिकल रिएक्शन को अगर आप डायग्राम, क्या हुआ बेटा ऑन लेफ्ट आई? अच्छा, थोड़ा रेडिश है. सो केमिकल रिएक्शन को जब हम डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं थ्रू ए फ्लो डायग्राम, दैट इज नोन एज अ केमिकल इक्वेशन, जो थोड़ी देर बाद में देखेंगे. सो इज दिस मच क्लियर? एनी डाउट हियर? यस मैम. By the rearranging of the atoms, can mixtures be formed? No. Please understand, a mixture is not a new substance with a new property. Mixture में हमेशा याद रखिए, parental properties are always retained.
You here will form a new substance with a new property, and a new substance with a new property means that you will be forming a compound or a molecule. नया molecule form होगा. Like say C plus O2. C is what? Carbon atom. तो समझा ही देते हैं. देखो C plus O2 क्या देता है मुझे? CO2. पहले कहां थे सर? पहले बहुत खुश था, मेरा शादी नहीं हुआ था, मैं आराम से रहता था. अब क्या सर? अब गले में बीवी आ गई है. पहले पहले तो सब कुछ मुझे चंद्रमुखी दिखता था. फर्स्ट फेज ऑफ मैरिज. देन इट बिकम्स व्हाट? सूरजमुखी. लिटिल बिट हीट इज जनरेटेड. देन इट बिकम्स ज्वालामुखी. नो मोर यू वांट टू सी ईच अदर्स फेस. तो ऐसा हो गया. कार्बन तुम गए कहां? सर मैं अब वो घर में रहता हूं. रीअरेंजमेंट. कार्बन ही होना. हाँ सर वही कार्बन हूं, लेकिन मेरी आजादी छीन गई है. समझ में आया? चलें आगे. चलिए नेक्स्ट. तो our story now goes back to again chemical reaction. ये सब तो हो गई chemical reaction. Now this is our fellow who is there in your grade, and इसको क्या हो गया है? इसको ज्ञान पार्ट तो आ गया है. The ज्ञान पार्ट he has understood. Chemical reaction ऐसे रट्टू तोते की तरह चीट तक लिया. Carbon reacts with this. अब ये सवाल पूछता है, ये सवाल पूछता है, हाउ डू आई गेट टू नो दैट अ रिएक्शन टुक प्लेस. है ना? तो इसमें दिमाग वाला लड़का जैसे हमारा जय है तो बोलेगा दिवाली का बॉम्ब लाके फोड़ दो, आवाज होगा, घर बार उजड़ जाएगा, तो तुम्हें पता चलेगा कि रिएक्शन हुआ है. हर रिएक्शन तो ऐसे नहीं होता है. तो हाउ डू यू नो दैट अ रिएक्शन टेक प्लेस? तो इसका आंसर देने के लिए हमें चाहिए कि एक और चीज जानना, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन. बोर तो नहीं हो रहे हो? अच्छा अद्वैत, बोर हो रहा है क्या? थोड़ा. कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स इन हिंदी विशेषताएं क्या है. आपको कैसे पता चलेगा कि एक केमिकल रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक क्या है? अब यहां से बहुत सारे सवाल यू कैन एक्सपेक्ट इन योर केस स्टडी टाइप, एंड दीज आर ऑल कॉमन सेंस ओरिएंटेड. तो कहानी को सुनते जाइए मजे तरह से. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन. जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है इन सीबीएसई से, इन योर बुक इट में बी 4, इन सम बुक इट में बी 5. 5 कैरेक्टरिस्टिक है. सर क्या पांचों बनते हैं? एक बन सकता है, 2 बन सकता है, 3 बन सकता है, किसी में शायद पांचों भी दिख रहा है. पर पांचों में से अगर कोई एक भी दिखा, यूजुअली देयर इज सम रिएक्शन दैट इज हैपनिंग. हैव यू अंडरस्टूड? द फर्स्ट वन, एंड वी विल गो वेरी वेरी डिटेल, इज नोन एज एवोल्यूशन ऑफ गैस. ठीक है ना? एवोल्यूशन ऑफ गैस मतलब गैस प्रकट होना, गैस निकलना, गैस प्रकट होना. यहां फिर से आ जाता है आवर बंटी मास्टर. हाउ डू आई नो? हाँ, तो हाउ डू आई नो के लिए, सिंस यू आर नन्ना मुन्ना छोटा सा प्यारा बच्चा ऑफ ग्रेड 10, इसमें ज्यादातर जब गैस की बात होती है, नाउ हियर व्हाट आई एम टीचिंग, यू विल फाइंड दिस इन एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट. You will find this in metal and non-metal, and this is one of the most important thing for grade 11 also. We're going to understand a practical aspect of a reaction. Okay, evolution of gas मतलब आपके सिलेबस में आप 2 गैसों के साथ ही परिचित होंगे. एक होगा हाइड्रोजन, एक होगा कार्बन डाइऑक्साइड. So we'll read each and every one in detail. ठीक है? Number 1, हाइड्रोजन is a gas. अगर ये इवॉल्व आउट हो रहा है, सपोज हाइड्रोजन इज कमिंग आउट, वी डोंट नो बिकॉज इट विल बी कलरलेस गैस. सो द टेस्ट फॉर इट इज दैट इफ you bring a lighted matchstick near a test tube from where you are getting a gas and you want to check out whether that gas is hydrogen or not, then this lighted matchstick will be burning with something which is known as a पॉप साउंड. और ये पॉप वर्ड के जगह पे आप ढॉप लिखोगे, फाट लिखोगे, फुडुक लिखोगे, सब जीरो मिलेगा. पॉप इज द वर्ड. पॉप साउंड. पॉप साउंड मतलब क्या है? इट्स समथिंग लाइक दिस. सी, इट्स से दिस इज द टेस्ट ट्यूब. ओके,
and we are having hydrogen coming out of it. So pop sound means ऐसे 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 करके फायर पकड़ेगा. Have you seen one दिवाली क्रैकर? पहले बटरफ्लाई जैसा बोलता था, बेकार का क्रैकर है बड़ा सा, ऐसे उड़ता रहेगा, ठप 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 करते रहता है. Hydrogen is exactly like that. If you bring the lighted matchstick, it will actually burn with top top ऐसा sound करेगा, like claps and bubbles burst होना जैसा करके fire करेगा. And you will get to know that this is hydrogen. Your problem is you don't go to a lab and you will be only remembering the theory. So how to detect the presence of hydrogen? If a gas is hydrogen, bring a lighted matchstick. Again, I'm saying, what do you bring out? Lighted matchstick. A lighted matchstick. ये लिख लीजिए पूरा. हाँ, इसके ऊपर ही टेस्ट बहुत सारा क्वेश्चन आएगा. How will you decode? और लिखने तो रहेगा, Bhojo and Paheli were doing an experiment and then Paheli brought a lighted matchstick. Bhojo started yelling, Paheli, Paheli, this is burning with a pop sound. What is the gas? Hydrogen. ठीक है ना? तुम ये मत बोलना दिल खुश गैस निकल रहा है, इसका ठप ठप फट रहा है. Yes sir. The hydrogen gas, will the pop sound be like louder if there's more hydrogen gas, or No. will it be? No other gas will burn with a pop sound. If you are having more gas being evolved, देखो गैस को चेक करने के लिए आप ऐसे भी कर सकते हो. जैसे अगर आप जहां से हाइड्रोजन गैस आ रहा है, राइट, you just take out a pipe from there and you put it in. Have you taken a bucket of say water and you put lot of surf excel into it and just create lot of foam? बहुत सारा foam create कर दो. अब उस पाइप को उस बकेट के अंदर डुबो दो तो वो फोम 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 होके निकलेगा. ये भी बता रहा है कि अंदर से गैस निकल रहा है, पर वो गैस हाइड्रोजन है, हमें नहीं पता चलेगा. हाइड्रोजन है पता करने के लिए हम क्या करेंगे? We will always bring a lighted matchstick. I have seen evolution of gas में, because in the syllabus we have got hydrogen and carbon dioxide. I am first dealing with hydrogen. मैंने अभी तक reaction का aspect ही नहीं बताया. I am just saying that you will be dealing with these two gases. One of the gases is hydrogen. Hydrogen's characteristic identity is that if the gas is hydrogen and a lighted matchstick is brought in vicinity to it, the matchstick will cease to burn continuously, but however it will burn with pop sound. Tap tap करते रहेगा ये matchstick. Clear हुआ? ठीक है. अब आगे चलते हैं हाइड्रोजन की और कहानी पे. ठीक है. Now, a presence of gas can also be understood by effervescence. Do you know what is effervescence? जैसे आप कोक का बॉटल करते bzzz करके होता है ना, what is coming out? Carbon dioxide is trying to come out, right? So you will always see effervescence. Effervescence का मतलब क्या है? गैस तो निकल रहा है. And in our syllabus, the gas is going to be either hydrogen or carbon dioxide. Carbon dioxide generally निकलता नहीं है because carbon dioxide is heavier than air. Carbon dioxide is always collected bottom. Carbon dioxide won't come out like this. ठीक है? So if there is effervescence, it means gas is being produced. Have you understood the meaning of the word effervescence? जब भी आप कुछ एक reaction करते bzzz करना शुरू हो गया, bubbling होना शुरू हो गया, gas is coming out. And in grade 10, all we are worried about is hydrogen. And if the gas is hydrogen, the way I tested is with this. Now let us see in what type of reactions do we expect that bzzz to happen. Now, this, whatever I am writing, write it very nicely because this is a part of your acid, bases and salt as well as metal and non-metal. इसको हम दोबारा देखेंगे. एक reaction लिख के रखिए. Metals react with dilute acid and our acid will be HCl. HCl क्या acid है? Hydrochloric acid. उस दिन लिखवा दिया था. आज सिर्फ चेहरा दिखाऊंगा. कौन है? माला है. खुद ही समझना पड़ेगा तुम्हें. Metals react with dilute hydrochloric acid and they will usually form metal salt and will release hydrogen gas. मैंने देखो गैस को कैसे लिखा है, ऊपर की तरफ दिखाया है. A metal is always denoted by S, which is a solid. Acid is denoted by AQ, means aqueous. अब के लिए इसको absorb करते जाओ. AQ means aqueous. कोई भी चीज जो गीला गीला है उसे हम aqueous कहते हैं. Aqua मतलब पानी. Metal salt is also aqueous. अब आप बोलोगे सर salt तो dry होता है. This is like the aquarium. Studio apartment, जहां खाना खा रहे हो वहीं पे बायो वेस्ट भी छोड़ रहे हो. टेस्ट ट्यूब, उसी में एसिड था, उसी में कुछ मेटल के चंक्स डाले तो मेटल सॉल्ट भी वहीं फॉर्म होगा, वो भी तो गीला है ना. एनाक्स. Have you understood this? Now, catch. Again, nothing related to this chapter, but for second and third chapter. If you watch this reaction, this metal, what it did,
this metal actually kicked out hydrogen. इसको ही आप बाहर जाके देखेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, इसने हाइड्रोजन को किक आउट किया है, तभी ना हाइड्रोजन प्रोड्यूस हुआ है। समझ में आ रहा है? तो अब सवाल आता है, सर विल ऑल मेटल्स रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड मेक मेटल सॉल्ट? आप खुद कॉमन सेंस से आंसर करो, नो सर, only those metals which are more reactive than hydrogen. Which metals? Only those metals which are more reactive than hydrogen. तो अभी कहानी में यहां रुक के थोड़ा सा फ्लैशबैक भी करना पड़ेगा, कौन कौन रिएक्टिव होते हैं, है ना, ये भी तो एक बात है। तो हाँ, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये चैप्टर 3 से आता है, हमें एक चीज जानना पड़ेगा, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। फिर देखो क्लास में तुम लोग घोड़े की तरह दौड़ोगे, अभी इतना मजा आ जाएगा। रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल, मेटल्स की औकात क्या है? तो मेटल्स की औकात के लिए हमें चलना पड़ेगा इंग्लिश के क्लास में, और हम राइम याद करेंगे। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अब यहां पे थोड़ा सा कलर बदलूंगा। क्यों बदल रहे हैं सर? जरूर कोई कारण है। केयरिंग, ठीक है। उसके बाद फिर zebra, instead try learning, right, try learning, और यहां पे भी कलर चेंज कर रहा हूं, how, ठीक है। copper saves gold, ठीक है ना। तो ये है हमारा ऑर्डर, ये है least reactive, because if some of you in this chapter are taking up a question and doing sample paper, then what will happen, you will not be able to answer one part of the question and the other, because questions कैसे आते हैं पता है, ये जो केस स्टडी के होंगे ना, ये आपके चैप्टर 1 से क्वेश्चन नहीं आएगा, उस कॉन्सेप्ट से चैप्टर 1, 2, 3 कंबाइन करके क्वेश्चन आएगा। तो अगर आप ये कहानी नहीं जानेंगे तो दूसरा पार्ट आंसर नहीं कर पाएंगे। और ये क्या, कौन है? ये है मोस्ट रिएक्टिव। सर ऐसे एलिमेंट के तो हमने कभी नाम ही नहीं सुने, इसीलिए तो यहां आए हो, आ जाओ प्लीज। स्टैंडिंग फॉर पोटेशियम, के, विच इज के मीन्स कैलियम, के मीन्स कैलियम, ओके। स्टॉप मीन्स सोडियम विच इज नेट्रियम, कॉलिंग कैल्शियम, मी मैग्नीशियम, ए एल्यूमिनियम, केयरिंग को अलग से रखिए, ये है कार्बन। सर आपने बोला रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल, इस नॉन मेटल को क्यों घुसाया? जरूरत है, आज नहीं जरूरत पड़ेगा, ग्रेड 11 में जब आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे तब इसकी जरूरत पड़ेगी, रख लीजिए इसको। कार्बन, कार्बन के बाद आता है जीब्रा, जीब्रा का मतलब है जिंक, इंस्टेड का मतलब है आयरन, यानी कि Fe, फेरम, ओ जिंक। रुकिए, अरे रुक जा, जो चीज नहीं आता है उसमें पटपट मत कर। डोंट ओपन द टेलीविजन विदाउट अ क्वालिफाइड टेक्नीशियन, यू आर हैजर्ड ऑफ गेटिंग अ शॉक। टिन का, टी का मतलब है टिन, स्ट्रॉन्शियम, एल का मतलब है लेड, Pb, इसको भी अलग से रखिए, ये है हाइड्रोजन। देखो पूरा चार्ट जो है, पूरा चार्ट नॉन मेटल्स में 2 नॉन मेटल आ रहा है हमारा, समझ में आया? हाइड्रोजन, कॉपर को मतलब तो कॉपर ही है, सेव्स का मतलब आर्जेंटम, गोल्ड, ऑरम, इसके बाद आता है प्लैटिनम। तो अब सवाल आता है, इफ वी वुड हैव रिएक्टेड कॉपर विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कॉपर में वो औकात नहीं है कि वो ठाकुर खानदान की बेटी के साथ शादी कर सके, है ना। ये तो गाना वही है ना, मैं तुझको भगा लाया हूं तेरे घर से। कॉपर यहां आता है, वो हाइड्रोजन से औकात नहीं है। गोल्ड में वो औकात नहीं है कि गोल्ड कैन रिप्लेस, हाउएवर लेड को रिएक्ट करा देंगे तो लेड हटा देगा। समझ में आया? ये जानने से जब आप एग्जाम्पल दोगे ना, गधे की तरह मत लिख के आना, कॉपर प्लस डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड कॉपर का सॉल्ट बन ही नहीं सकता है। समझ में आया? प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ कैरिंग ज़ेब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड। एसन मतलब टिन, स्ट्रोंशियम, स्टैनम, सॉरी नॉट स्ट्रोंशियम, स्टैनम, टिन, ठीक है। आगे चले, आगे नहीं पीछे, दोबारा।
So metals react with dilute hydrochloric acid to form metal salt. थोड़ा सा रिएक्शन के बारे में भी देखते हैं, रिएक्शन होता कैसे, टाइम लगेगा इन सब चैप्टर में। जैसे एक मेटल लेते हैं जिंक, Zn को हमने रिएक्ट किया किसके साथ? अच्छा, इस पोर्शन में एनसीईआरटी वगैरह में आपको कोई रिएक्शंस नहीं दिखेंगे, रिएक्शंस मींस इक्वेशंस नहीं दिखेंगे, नॉट इवन इन लक्ष्मी सिंह, बट वी विल टेक द इक्वेशंस क्योंकि द विच इज वेटिंग फॉर अस। अभी मीट कर लो, वॉच नहीं, विच मतलब डायन, तो डायन इज वेटिंग, वेदर यू मीट हर नाउ और यू मीट लेटर, अभी मिल लो तो अच्छा है। जिंक रिएक्ट्स विद डाइल्यूट HCl, ठीक है, और क्या बन जाता है? जिंक क्लोराइड ZnCl2 and gives you हाइड्रोजन। और ZnCl2 बनने के लिए यहाँ पे जो डाइल्यूट HCl है तो हम HCl को भी 2HCl करेंगे, तो देखो इक्वेशन बैलेंस हो गया, 2 हाइड्रोजन, मेटल सॉल्ट। थोड़ा और चीज देखो, जो एसिड होता है ना HCl, एसिड एक्चुअली dissociate itself as H plus and Cl minus, hydrogen ions and chloride ions. Have you understood? प्लसवा है तो इसको क्या बोलेंगे? कटायन बोलेंगे, और ये एनायन बोलेंगे इसको। समझ में आया? अब ये मेटल जो है जिंक किसके साथ दोस्ती करता है? जाके क्लोरीन के साथ। हालांकि इस सेक्शन में इसकी जरूरत नहीं है, और व्हेन वी गो टू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स विल नीड दिस, तो यहीं से जानना शुरू करते हैं ये रिएक्शन होता कैसे, थोड़ा और देखते हैं। आइए नेक्स्ट में। सो if you remember, in any product if you see of zinc's oxidation state is always +2, ZnCl2, ZnO। तो जिंक अकेला क्या होता है? जिंक always loses 2 electrons and becomes zinc 2 plus 2 electrons, little bit high level but try to understand। 2 plus 2 minus makes it zinc, this is the standard। जिंक क्या करता है? अपना 2 इलेक्ट्रॉन खो के मांगलिक स्टेटस आ जाता है। मांगलिक का शादी अभी मांगलिक के साथ ही तो करना पड़ेगा, ये जिंक ऐसे खड़ा हुआ है अभी, ठीक है। और जैसे ही HCl आता है, HCl एक्वस है। एक्वस मतलब एन एसिड विच इज हैविंग वाटर इन इट। अगर एसिड में वाटर नहीं है, एसिड अपना प्रॉपर्टी दिखा ही नहीं सकता है। So in a very nice sense, if I take 1 bucket of concentrated acid and I splash it on your face, केमिस्ट्री वाइज नथिंग शुड हैपन, लेकिन आप बोलोगे सर मुंह तो जल जाएगा, दैट्स बिकॉज योर फेस हैज गॉट मॉइस्चर। अगर मॉइस्चर नहीं है, एसिड कैन नॉट रिएक्ट। सो एसिड ऑलवेज डिसोसिएट्स इनटू H plus and Cl minus। थोड़े से एसिड के बारे में भी जान लेते हैं, फिर चैप्टर मजा आएगा, इसीलिए तो टाइम लेंगे। एसिड वो होता है जो H plus प्रोड्यूस कर सकता है। नाउ जस्ट चेक इन योर माइंड, H2SO4 वो भी H plus देता है, HNO3 वो भी H plus देता है, CH3COOH वो भी H plus देता है। अब H plus कौन है जरा देखो, ये है हाइड्रोजन का एटम। हाइड्रोजन के पास क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन and 1 प्रोटॉन। हाइड्रोजन डज नॉट हैव ए न्यूट्रॉन। H plus का मतलब है कि इस इलेक्ट्रॉन को तुमने किडनैप कर लिया है ना? The electron is gone. This is nothing but H plus. Do you agree or not? So can I not say an H plus is a proton? An H plus is a proton. Higher class you will always study. Whenever acid formation is taking place, they use the word protonation. एक word आप सुनोगे, क्या सुनोगे? Protonation. Protonation मतलब शैतानेशन, मतलब शैतान की सृष्टि। प्रोटोनेशन मतलब ऐसा चीज जो प्रोटॉन छोड़ रहा है, एसिड छोड़ रहा है। Have you understood? तो अभी खिलाड़ी कौन कौन है मैदान में देखो, Zn2+ यहां पे बैठा हुआ है, समझ में आया? H+ बैठा हुआ है, समझ में आया? Cl- बैठा हुआ है, और 2 इलेक्ट्रॉन, अरे पता नहीं इनके लड़ाई में हमको तो बैठना ही पड़ता है, वो भी बैठा हुआ है, ठीक है। अब बात आता है क्या Zn2+, this is particularly typically, and my sir in chemistry used to teach me in this language, so I'll teach you like that। My sir from Kerala, एक मजेदार सर थे हमारे, वो ऐसे ही बताते थे, एक गर्लफ्रेंड के लिए 2 बॉयफ्रेंड लड़ रहा है अभी, कौन उठा के ले जाए? अब जिसके पास पोश की गाड़ी है, जिसके पास आई वॉच है, इसके पास है, इसकी औकात बड़ा है। देखो कहाँ पे है ये यहाँ पे है। और हाइड्रोजन गरीब्स, तो हाइड्रोजन क्लोरीन कहता है मुझे नहीं पता, ही इज टेकिंग मी फॉर अ राइड एंड फॉर द, तो ये क्या करेगा? इस क्लोरीन को उठाएगा, लेकिन इसके पास 2+ है,
ये तो सिंगल प्लस है, तो तुम अपना रिएक्शन याद करो, तुमने 2HCl लिखा था, याद है? तो हमारे पास हो गए 2H प्लस और 2Cl माइनस। अब बहुत जबरदस्त शादी हो गया इनके बीच में, Zn2 प्लस Cl माइनस Cl माइनस, ये प्रोडक्ट क्या हो गया? ZnCl2। समझ में आया? अब ये तड़पता हुआ आत्मा ऐसे तो नहीं छोड़ सकते ना, ये कहता भाई हमें हमारा भी मांगलिक है, हमसे शादी कर लो, कोई ना कोई तो चाहिए। हाइड्रोजन 2 प्लस लेके बैठा है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या चाहिए? 2 माइनस। ये 2 माइनस पिएगा, एक हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन को पिएगा, बनेगा एक हाइड्रोजन का एटम। दूसरा हाइड्रोजन एक और इलेक्ट्रॉन को पिएगा, बनेगा एक और हाइड्रोजन एटम। दोनों हाइड्रोजन एक दूसरे को खा के बन जाएंगे हाइड्रोजन गैस। दिस इज द एनालॉजी ऑफ द रिएक्शन। ये आपका एनसीईआरटी नहीं देगा, अभी नहीं देगा, अब स्कूल में भी नहीं बताएगा, लेकिन दे एक्सपेक्ट यू इन ग्रेड 11 व्हेन यू गो इन कोचिंग इंस्टीट्यूशन, यू डोंट नो how cations and anions are forming, what is oxidation state? I know. This is how the reaction takes place. ये जो हम लिखते हैं ना Zn plus HCl, ये आपके बोर्ड का क्वेश्चन नहीं है, ये आपने सीखा कैसे होता है। ZnCl2 समझ में आया कहानी? ठीक है, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? एवोल्यूशन ऑफ गैस। वापस चलिए, our interest is actually on this particular thing. यस सर, ये हमारा इंटरेस्ट है, एवोल्यूशन ऑफ गैस। जस्ट 1 मिनट। सो इन एवोल्यूशन ऑफ गैस का एक एग्जांपल क्या होता है? दिस एग्जांपल व्हाई आई हैव मेड यू राइट, बिकॉज दिस एग्जांपल विल बी अ वेरी हैंडी एग्जांपल इन द चैप्टर ऑफ एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेटल्स आल्सो। मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स टू फॉर्म मेटल सॉल्ट्स एंड रिलीज हाइड्रोजन। तो ये अगर यहाँ पे HCl की जगह H2SO4 होता तो क्या बनता? मेटल सल्फेट MSO4। HCl की जगह HNO3 होता तो क्या फॉर्म करता? मेटल नाइट्रेट MnO3। HCl की जगह H3PO4 होता तो क्या फॉर्म करता? मेटल फॉस्फेट MPO4। अगर इसकी जगह कार्बोनिक एसिड होता, हालांकि वीक एसिड है, तो मेटल कार्बोनेट। दिस इज द लॉजिक टू स्टडी। सो मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स टू फॉर्म मेटल सॉल्ट्स एंड रिलीज हाइड्रोजन गैस। And how is hydrogen gas tested? Hydrogen gas is tested by bringing a lighted matchstick. Can you give me an example of this type of equation? Well, you can take zinc in solid form, reacts with dilute hydrochloric acid in aqueous form, forms ZnCl2 in aqueous form, and releases hydrogen in gaseous form. ये है proper way of writing what you call the reaction. आपका क्वेश्चन लूंगा, just 1 minute. So what did we learn? We learned the first characteristic, that is evolution of gas. If you ever see that using two chemicals you could have a scenario where effervescence or evolution of gas is noticed, then it is 100% confirmed that a chemical reaction has taken place. Since we are nanna munna bachchas of grade 10, for us the gas can be either hydrogen or it can be carbon dioxide. We analyzed the entire story of hydrogen, where we first said hydrogen is a very explosive gas, very explosive gas. So to detect the presence of hydrogen, bring a lighted matchstick near the test tube which contains or which is releasing hydrogen. It will burn with a pop sound. Have you understood? And then we said, is there a type of reaction जो आप इसका example दे सकते हैं? हमने कहा reaction भूल जाओ, हम आपको एक family of reaction बता देते हैं। Metals react with dilute hydrochloric acid or any acid to form metal salt and releases hydrogen gas. Be careful, not all metals, because this reaction is all about the metal's ability to kick hydrogen. Hydrogen is paired with his girlfriend, very happy, but you have to kick this hydrogen बाहर, इसको निकालना है। तो आप में वो औकात होना चाहिए। उस औकात है कि नहीं, उसके लिए हम please stop calling me a zebra। तो आप इस एक्सपेरिमेंट में एग्जाम्पल में, सर मैं जिंक नहीं यूज करके एल्यूमिनियम कैल्शियम, बेटा कुछ भी यूज कर ले, बस इसके आगे मत जाइयो, वरना तेरा एग्जाम्पल गलत हो जाएगा। समझ में आ गया? एंड देन ऐसे रिएक्शन होता है। These are all we will study again and again. This is to understand how the reaction takes place. Yes, darling, your question. You asked something. Aqueous means liquid. Aqueous means liquid. Aqua means water. Aquafina. Anything which is in water is called aqueous. If you are today enjoying a bath in a bathtub, we will say Siddharth aqueous. हाँ, So what is the upward arrow? अपवर्ड मतलब गैस है, लाइटर देन एयर है, इसीलिए ऊपर प्रभु की तरफ जा रहा है। और जब प्रेसिपिटेट लिखते हैं ना तो डाउनवर्ड लिख के रखते हैं, क्योंकि प्रेसिपिटेट अब पढ़ेंगे उसमें प्रेसिपिटेट अलग से लटक जाता है।
insoluble and it will settle down. These are lab signages which we use. कहिए कोई सवाल इसमें? सिर्फ हाइड्रोजन की कहानी हुई है, अब कार्बन डाइऑक्साइड की कहानी बाकी है. This carbon dioxide has to burn with a oxygen. कार्बन डाइऑक्साइड इज ए फायर एक्सटिंग्विशर. गलती से भी मत बोलो, ये बाहर जो लाल लाल रंग के फायर एक्सटिंग्विशर लगे हैं, दो टाइप के होते हैं. These वन इज कॉल्ड डीसीपी. डीसीपी इज ड्राई केमिकल पाउडर. स्प्रे करते ही पाउडर निकल के आएगा. इन 1 मिनट आवर प्यूषा विल से आंटी 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 बन गई पूरा. इट इज सो बारीक व्हाइट इन कलर. नेवर यूज दैट फायर एक्सटिंग्विशर अनलेस एंड until it is very required like an electrical fire. Another is CO2 type. So CO2 will come out. CO2 is a fire extinguisher. हाँ, हाइड्रोजन बर्न. CO2 का बर्निंग नहीं है. अभी CO2 में आएंगे. कितना पढ़ा नहीं क्या था? CO2 टर्न्स लाइम वाटर मिल्की. हाँ, वही पढ़ना है अभी. चलें आगे. आइए, CO2 की कहानी. आज का मैडम एनी क्वेश्चन हाइड्रोजन तक का? No. फैसेट एक ही पढ़ा हमने, उसमें और है नहीं शायद. भरने का भी अभी वैसा सिस्टम नहीं. अभी बॉटल है, एक है, पी लो. हाँ, और अगले दिन से नॉट दैट आई एम कंजूस, पानी वानी पी के आया करो. 1 घंटा पानी नहीं पीने से कोई मर नहीं जाए. तुम्हारे सामने मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, मैं पानी पी रहा हूँ. बस डिस्ट्रैक्शन चाहिए. इन लास्ट ईयर्स क्लास आई हैड 2 बॉयज. उनको आके पहले वॉशरूम जाना होता है. देन आई सेड नो मोर यूजिंग. घर से किडनी खाली करके आओगे. सर यू आर बीइंग इनह्यूमन. यस आई एम लाइक दैट. बाकियों को यही पानी पीना, नहीं पानी नहीं पी सकते. चलो CO2 के बारे में पढ़ते हैं. ठीक है, CO2 के कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं पहले. CO2 इज अ गैस विच इज, ऑलवेज रिमेंबर, 1-2 क्वेश्चन कभी कभी कहीं कंपटीशन में पूछ लिया तो, हेवियर देन एयर है. CO2 ऑलवेज सेटल्स डाउन. CO2 में हम ऐसे एरो नहीं दिखाते हैं. CO2 ऊपर नहीं आता है. CO2 इज कलेक्टेड बॉटम. तो इसका टेस्ट होता है. कार्बन डाइऑक्साइड, दिस इज द पेरेंटल स्टेटमेंट. कार्बन डाइऑक्साइड टर्न्स लाइम वाटर मिल्की. मतलब 1 ग्लास पानी में नींबू घोल लो और फिर कार्बन डाइऑक्साइड पास कर देने से वो मिल्क बन जाता है, उसको पी लो. यही तो कह रहा है ना, कार्बन डाइऑक्साइड टर्न्स लाइम वाटर मिल्की. हाँ भी बोल रहा है, देखो, कार्बन डाइऑक्साइड टर्न्स लाइम वाटर मिल्की. चलो इसको देखते हैं, पूरी स्टोरी को देखते हैं. सबसे पहले हमारे पास एक प्रोडक्ट होता है जिसका नाम होता है CaCO3. दिस इज नोन एज कैल्शियम कार्बोनेट. लिखते जाओ ये सब. हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है. इसका बाजार का नाम है लाइमस्टोन. कैल्शियम कार्बोनेट इज ऑल्सो नोन एज लाइमस्टोन. समझ में आया? This is something which is present in eggshells. So if your soil or your flower plant needs calcium carbonate, calcium चाहिए, basic करना है, take some eggshells, dry them, put them in the mixie, powder them and sprinkle the powder on the tub. यही भी, हाँ, चौक ही है कैल्शियम कार्बोनेट. ठीक है. तो कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट को अगर आप हीट करेंगे, अच्छा हीट, अभी हीट लिख रहा हूं, इसके बाद से नहीं लिखूंगा. आई विल बी यूजिंग दिस सिंबल कॉल्ड डेल्टा. डेल्टा स्टैंड्स फॉर हीट. अच्छा थोड़ा ये सब भी सीख लो. नहीं, वो दूसरा है. दिस इज हीट मीन्स इन अ रिएक्शन. Q इज द नोटेशन. दिस मीन्स हीट. एंड ऐसे करके दिखाना मतलब सनलाइट, सूरज की रोशनी आ रही है. ठीक है. Sir, can't we just draw sun here? नहीं बेटा, ऐसा होता तो मैं ही खुश हो जाता. फिर आप कहोगे सर इसके बाद हम कार्टून में, I'm a copper, I'm very sad, I reacted with hydrochlor, wow that was so nice. काश ऐसा हो पाता. ठीक है. सनलाइट इज एक्चुअली इतना सा पोर्शन नहीं रहता है. वन लाइट, हाँ, थोड़ा सा कुछ ऐसा, मतलब गिर रहा है ऊपर से. ठीक है. हाँ यार, कोई स्केल लेके मेजर करके तुम्हारा मार्क्स नहीं काटेगा. चलो आगे. कैल्शियम कार्बोनेट को हीट देने से वो प्रोड्यूस करता है CaO और CO2. ये CaO को हम कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड और इसको हम कहते हैं क्विकलाइन. क्विकलाइन. और इसका जो बाजार का भाषा है वो है चूना.
समझ में आया? पान की दुकान में जो चूना मिलता है ना, that is actually diluted, otherwise the tuna comes in rocks. I think all of you, when you have done track and field meet, your PT sir will always make you make those tracks. Powder रहता है, that is calcium oxide, और उसको अगर ज्यादा आपने हाथ से पकड़ा ना तो आपके हाथ खा जाते हैं. Therefore you should always wear gloves, otherwise your nails and everything you will see they're becoming very dry. Or calcium oxide, so this is known as quicklime. समझ में आया? Calcium oxide, ये नाम याद रखिए, ये सब ऐसे नाम से आता है. This is carbon dioxide, right? Further, जब इस CaO को हम वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, CaO इज अ सॉलिड, और वाटर को देखो क्या लिखते हैं, L लिखते हैं, वाटर इज लिक्विड. ठीक है, ये बनाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. अच्छा, इसकी भी थोड़ी सी समझ लो कैसे होता है. वाटर क्या है बेटा? वाटर इज डाइहाइड्रोजन ऑक्साइड. तुमने नाम दिया है वाटर. CO2 अगर कार्बन डाइऑक्साइड है तो वाटर डाइहाइड्रोजन ऑक्साइड है. वाटर इज HOH. वाटर इज कंसिडर्ड टू बी न्यूट्रल. वाटर जब स्प्लिट करता है ना तो एक एसिड का बंदा प्रेस करता है और एक बेस, एक देवता एक राक्षस, दोनों मिक्स होके न्यूट्रल हो जाता है. दैट्स व्हाई वाटर इज न्यूट्रल. तो वाटर ने हमें क्या दिया? H+ दिया है और OH-. So OH is always said to be minus. Calcium always creates 2+. Calcium is in group 2. बेटा मांगे कार स्कूटर. ग्रुप 2 मतलब उसकी वैलेंसी 2 है, तो एक OH शादी नहीं करता है, 2 OH उसके साथ शादी करता है. समझ में आया? दिस थिंग, हाँ बेटा बोलो. एनीवन आस्किंग एनीथिंग? ओके, दिस इज नोन एज स्लेकेट लाइम, ऑल्सो नोन एज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है ना? इस चीज को बारीक सा एक सिल्क हैंकरचिफ में अगर आप लेके इसके वाटर को आप कलेक्ट करोगे ना तो ये एकदम क्लियर वाटर होता है, और इसी को हम कहते हैं लाइम वाटर. समझ में आया? लाइम वाटर, स्लेकेट लाइम. स्लेकेट लाइम में कभी भी मिक्सिंग ठीक से नहीं होगा. दिस इज अ वीक बेस, सो हियर यू विल नॉट सी गुड मिक्सिंग. इसको क्या करते हैं हम, पानी या रुमाल में छान लेते हैं. तो गांव में या जैसे लाइक विथ मी आल्सो इन चाइल्डहुड अ लॉट ऑफ दिस थिंग्स वर डन. इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम वर्म्स, पेट में बच्चा, और यू आर सफरिंग विद लॉट ऑफ एसिडिटी, बचपन में सुबह उठ के खाली पेट में ये पिला दिया जाता है. मैंने बहुत पिया है. पी देने से आपकी नॉर्मल एसिडिटी लेवल डाउन हो जाता है. वेरी लेस इन अ कप लाइम वाटर. हैव यू अंडरस्टूड? अच्छा, थोड़ा और चीज बता देते. ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है ना, this calcium oxide in earlier days, in before cinema came in theaters and all in Britain and America, this used to be burned. ये बहुत लाइट देता है. यहीं से वो वर्ड आया है लाइमलाइट. She loves to be in limelight. तेज में लाइम को जला के लाइट, और ब्रिलियंट लाइट आता था, उसको हम कहते थे क्या? लाइमलाइट. लाइमलाइट वर्ड यहीं से आता है. ठीक है, तो ये हो गया हमारा लाइम वाटर. एंड लाइम वाटर इज एब्सोल्युटली क्लियर. ठीक है, तो लाइम वाटर को हमने अलग लिया यहाँ पे. दिस इज लाइम वाटर, दिस इज लाइम वाटर. लाइम वाटर का और क्या नाम है? स्लेकेट लाइम. और क्या नाम हो सकता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है, ये क्लियर है, एकदम क्लियर. दिस विल बी क्लियर. आर पार आपको चेहरा दिखाई देगा. हैव यू एनीवन एक्सपीरियंस लाइक हाउ यू curdle milk to make paneer? First of all, boys and girls, if you are not spending time at kitchen, you can never understand chemistry. That's the first place. Boil milk, and when the milk starts boiling, what we do, we either will squeeze a lemon or we'll put vinegar on it. Once you put vinegar, the entire milk will curdle, and then you will see greenish, exactly paler than the t-shirt is wearing. Greenish water are being separated out. Milk है ही नहीं पूरा, वैसा clear water होता है ये. अब आपने तो छेना काटना देखा ही नहीं है, तो आप क्या समझोगे ये? इसलिए अगली बार जब घर में पनीर बन रहा है तो जाके देख लेना. ठीक है, लाइम वाटर. इसमें अगर हम CO2 डाल देना तो आपको कैसा दिखेगा पता है? क्लाउडीनेस आना शुरू हो जाएगा. Sometimes you see na some fumes which immediately, like you have like a charcoal fume or something, you can actually see the fume color. So once CO2 gets inside it, you will actually see trace of white traces being created, and slowly this entire thing will become मिल्की हो जाएगा. यही है वो टेस्ट that
कार्बन डाइऑक्साइड टर्न्स लाइम वाटर मिल्की. आगे रिएक्शंस में भी देखेंगे. हैव यू अंडरस्टूड? सो इफ यू हैव लाइम वाटर, so how to understand it? Suppose we had a reaction and this reaction is giving out a gas. Giving out means you have to collect it. Carbon dioxide कभी ऊपर नहीं आएगा because it's heavier than air. You have to collect it below. तो आपने उस गैस को collect किया है and since we are in grade 10, so the gas has a chance of being carbon dioxide. How do we test this carbon dioxide or not? उस ट्यूब को आप सीधा कनेक्ट कर दो लाइम वाटर के एक टिपिकल बीकर में और वो क्लियर बीकर क्या हो जाएगा, धीरे धीरे उसमें ऐसा लगेगा कि कोई व्हाइट कलर का कोई ट्यूब छोड़ दिया है. व्हाइट 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 होके क्लाउडी होके पूरा मिल्की हो जाता है. इस रिएक्शंस को देखते हैं. आइए. सो व्हाट आर द रिएक्शंस दैट आर देयर इन दिस एंटायर प्रोसेस? द फर्स्ट रिएक्शन दैट वी सॉ वाज, दिस विल अगेन बी रिपीटेड चिल्ड्रन इन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. सो व्हेन यू स्टडी सॉल्ट्स, अभी समझ लो, कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड एंड इट फॉर्म्स व्हाट? CaO plus CO2. किसी के घर बार को आपने तोड़ दिया, इस रिएक्शन को हम कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन. When AB as a substance is broken to A plus B. And how did you break it? By using heat. So this reaction will be called thermal decomposition. पढ़ेंगे आगे, पर अभी लिख के रख लेते हैं. यह है हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन. थर्मल मतलब हीट. तो जब हम थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस पढ़ेंगे, वी कैन गिव दिस एज एन एग्जांपल फॉर थर्मल. अगर आपने सनलाइट से किसी के घर बार को तोड़ा तो उसको क्या बोलेंगे? फोटो डिकम्पोजिशन. अगर आपने बिजली से किसी के घर बार को तोड़ा, इलेक्ट्रोलिसिस बोलेंगे. पैरालिसिस मतलब अंग वंग टूट जाना, इलेक्ट्रोलिसिस मतलब इलेक्ट्रिसिटी से तोड़ देना. समझ में आया? 3 तरह के डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होते हैं, फोटो, थर्मल एंड इलेक्ट्रोलिसिस. और थोड़ा जान लिया, आगे फिर जानेंगे. राइट. सो यू गेट CO2. So you can write the names of the product. Calcium carbonate reacts with is heated and then it gives you calcium oxide plus carbon dioxide. लिख दूं क्या? नहीं याद रहेगा? कहाँ याद रहेगा? कल ही भूलोगे. इतने बच्चे कोई याद नहीं कर. ये अभी कल थोड़ी पूछूंगा, ये तो मेटल नॉन मेटल के बीच में जाके पूछूंगा. कैल्शियम, कल रात क्या खाया था वही याद नहीं है और ये याद. कार्बन डाइऑक्साइड. Calcium oxide reacts with water to form calcium hydroxide, which is nothing but my lime water. इस रिएक्शन को दिखाने से, अच्छा कैल्शियम ऑक्साइड को हम सॉलिड दिखाते हैं, ये सॉलिड है, ये लिक्विड है और ये क्या है? ये हमारा बन जाता है एक्वस, क्योंकि ये पानी में आ गया. ठीक है, ये सॉलिड है, ये भी सॉलिड है और ये है हमारा गैस. ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. इसके साथ एक और वर्ड लिख के रख लीजिए, अभी इस चैप्टर में जरूरत नहीं है, बाद में जरूरत पड़ेगा. ये एक तरह का कमजोर बेस है, वीक बेस. सो व्हेन वी स्टडी एंड से वीक बेस, तब आपको याद आना चाहिए. ओके, चलिए आगे. यस सर. ये एकदम सेम थिंग. स्लेकेट लाइम को कपड़े में छान लेने से लाइम वाटर होता है. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज ऑल्सो नोन एज स्लेकेट लाइम. ठीक है. नाउ आवर मेन रिएक्शन. हमारा मेन रिएक्शन क्या है? हमारे मेन रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन हो रहा है CaOH2 के साथ. ये ससुरा पैदा करेगा CaCO3, ठीक है ना, प्लस H2O. ये है लिक्विड, ये है एक्वस, ये है एक्वस और ये है गैस. और ये जो है ना, यही एक तरह का प्रेसिपिटेट है. दिस इज अ प्रेसिपिटेट. नाउ लिटिल बिट प्रेसिपिटेट आगे पढ़ेंगे, जैसे समझ लेते हैं. व्हाट इज अ प्रेसिपिटेट? अ प्रेसिपिटेट इज अ insoluble residue which will separate out from the reaction. मतलब देखो, रिएक्शन जब शुरू हो रहा था हमारे पास क्या था? कप में क्लियर लाइम वाटर था, कोई चीज नीचे था नहीं था. हमने उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भेजा, अदृश्य हो गया. कार्बन डाइऑक्साइड डजंट हैव एनी कलर, बिना कोई कलर का अंदर गया. फिर देखो क्या हो गया, एब्राकाडाब्रा, नीचे प्रिपिटी आना शुरू हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट. एंड दिस कैल्शियम कार्बोनेट इज द वन हु विल बी कॉजिंग योर मिल्कीनेस. अब यहाँ पे एक और चीज, केस स्टडी के लिए हमने पेंटर हायर किया है. किसको हायर किया? पेंटर. व्हाइट वॉश करने के लिए. नॉट ऑल दिस नैरोलैक एंड रॉयल एंड ऑल. व्हाइट वॉश मतलब जिसको हम हिंदी में कहते हैं पुताई,
सफेद वाला जो होता है ना, जो स्कूल के वॉल्स में रहता है। पेंटर क्या करेगा, व्हाइट वॉश के लिए बाजार से चूना खरीद के लाएगा, फिर बकेट में वो इसको मिलाएगा, और ये रिएक्शन में ये भी लिख के रखिए, हीट पैदा होगा। आगे पढ़ेंगे इसको, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन में भी आएगा, ये हीट पैदा करेगा। जब भी आप किसी बकेट में you are taking tuna and you are pouring water and trying to mix, the bucket will immediately heat up. पहले जमाने में क्रांतिकारी सिनेमाज में दिखाते थे, सारे एक्सप्लोसिव में भी चूने को यूज करते हैं, it will start heating up. हाँ, so test tube also will turn warm. चूना को पानी में लेके आप हाथ में ऐसे करोगे ना, गर्म आना शुरू हो जाएगा. So this will give you heat. Have you understood? Once the painter has done all these things, then he will take out one पुराना धोती जैसा कपड़ा लेकर फटाक मारेगा, बकेट के रखे, एक बकेट से और एक बकेट में ट्रांसफर करेगा. क्या ट्रांसफर किया उसने? लाइम वाटर ट्रांसफर किया है, thick lime water, and then he will put his brush and he will go on brushing the wall. अब एनवायरनमेंट में क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड. वो कार्बन डाइऑक्साइड वॉल के लाइम वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और थोड़ी देर बाद कैल्शियम कार्बोनेट का सतह पैदा कर देगा, जिसे तुम जैसे शैतान बच्चे स्कूल में जाके नाखून से खरोच खरोच के फ्लेक्स उतारते हो ना, यू आर बेसिकली टेकिंग आउट व्हाट? कैल्शियम कार्बोनेट फ्लेक्स. अब अगर आपको वेरी स्पीडी रिएक्शन चाहिए, मतलब मेरे दीवार जल्दी जल्दी व्हाइट क्यों नहीं हो रहे हैं, बहुत बच्चों को घुसा के बोलो सिर्फ एक्सेल करो. The more they exhale, the more is the carbon dioxide. The more is the carbon dioxide, the faster is the reaction. ठीक है, समझ में आया? अच्छा, इसके बाद एक और रिएक्शन है जो कि इंटरेस्टिंग है, इसको हम कहते हैं डीगैसिफिकेशन. मतलब CaCO3 प्लस H2O, ऐसा था ना? अच्छा, इस रिएक्शन में एक खासियत है, कार्बन डाइऑक्साइड आपको धीरे धीरे छोड़ना पड़ता है लाइम वाटर में. ऐसा नहीं कि ब्रर करके छोड़ दो, धीरे धीरे छोड़ो, तब ये होगा. अगर आप इसमें फिर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और इसमें हम लिखते हैं एक्सेस. एक्सेस का वर्ड का मीनिंग होता है डीगैसिफिकेशन. ये भी हायर केमिस्ट्री वर्ड है. डीगैसिफिकेशन मतलब गैसों में भून देंगे तुमको, इतना कार्बन डाइऑक्साइड पैदा किया. ये जो पीपीटी हुआ था ना मिल्की, ये मिल्की पना गायब हो जाएगा. इट विल फॉर्म कैल्शियम, इट विल फॉर्म कैल्शियम बाइकार्बोनेट. बाइकार्बोनेट इज HCO3. अच्छा, ये भी बताएंगे, कैल्शियम बाइकार्बोनेट एंड वाटर. अब ये जो बंदा है ना, ये लेकिन सोल्यूबल है. ये पूरा कहानी समझिए. If carbon dioxide is introduced in lime water, it will create a PPT which is responsible for creating the milky appearance. However, to this mixture, क्योंकि water ही तो है ना, अगर ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड दे दिया बक 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 करके, तो क्या हो जाएगा? उसको हम कहते हैं excess CO2. That's called degasification. You will create a salt which is calcium bicarbonate. तो इसको हम बोलते हैं, अभी इसको भी समझा देते हैं, calcium bicarbonate. And calcium bicarbonate is soluble in water. समझते हैं इस चीज को, थोड़ा सा इसकी लॉजिक को भी. Carbonate comes from carbonic acid H2CO3. That's why I made you write all the acids. H2CO3. These things your school will not cover, your book will not cover. You will do rattofy unless you know the logic. तुम फिर भूलोगे, इसीलिए आपको डिटेल में बता रहा हूं. कार्बोनिक एसिड जब डिसोसिएट करेगा एक्वस मोड में, तो वो डिसोसिएट कैसे करेगा? दो हाइड्रोजन छोड़ेगा and it will dissociate as CO3 2 minus. This anion is known as a carbonate anion. समझ में आया? अब कार्बोनेट को अलग से लिया, कार्बोनेट को एक हाइड्रोजन आयन दिया, 2 minus and 1 plus. What is the algebra resulting to? 1 minus. Minus 2 plus 1 कितना होता है? -1. तो जो नया एनायन बना उसको हम बोलते हैं HCO3 माइनस, और इस एनायन का नाम है बाइकार्बोनेट. तो अगर आपको भी कोई पूछा सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला क्या है, सोडियम ग्रुप 1 में है Na+, और ये HCO3 माइनस NaHCO3. बताओ तो मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट क्या होगा? सर Mg तो 2+ है, HCO3 ब्रैकेट 2, उसी परिवार का ही तो कैल्शियम है, ग्रुप 2. कैल्शियम कैसा होता है? Ca2+. उसके साथ इसकी शादी होगी तो ये बोले एक और बाइकार्बोनेट लाइए.
Understand? The idea to explain is so that if you want to study science in higher classes, किसी एक सब्जेक्ट को तो अपना प्यार बनाओ. कोई फिजिक्स को प्यार करेगा, कोई केमिस्ट्री को प्यार करेगा, कोई बायोलॉजी, कोई जूलॉजी, कोई बॉटनी. इसीलिए कहानी खोल के आपको बता रहे हैं. Clear? So this is the reaction. This concludes for us to understand like lime water turns milky. तो इसके लिए एक रिएक्शन अगर आपको किसी ने बोला, sir, how do we understand, how do we know whether something is releasing carbon dioxide or not? Take sodium carbonate. Sodium carbonate. तो इसका रिएक्शन भी हमें जानना चाहिए. So let's go for a reaction. So let's take one standard reaction. Evolution of CO2. Evolution of CO2 के लिए आप लीजिए सोडियम कार्बोनेट. सोडियम कार्बोनेट, इट्स अ कार्बोनेट सॉल्ट, और इसको रिएक्ट करा दीजिए डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ. देखो तुम खुद बताओगे ये रिएक्शन क्या होता है. सोडियम कार्बोनेट होता है Na2CO3. CO3 इज ऑलवेज 2 माइनस, तो Na2 ही आएगा उसके साथ. इसका रिएक्शन हो रहा है किसके साथ? HCl के साथ. अब क्या करेगा? Na का आंख रहेगा. हम बहुत दिन CO3 के साथ रह लिया. आई एम जस्ट नॉट लाइकिंग, यू नो, शी इज नॉट माय कप ऑफ टी. क्लोरीन के ऊपर आंख रहेगा. क्या ये क्लोरीन को भगा पाएगा? बिल्कुल. बाप है तो वो क्या करेगा? NaCl प्रोड्यूस करेगा. रिएक्शन है किसके ऊपर? CO2 की एवोल्यूशन के ऊपर. तो CO2 तो बनना ही पड़ेगा. किसको यूज नहीं किया? एक H को यूज नहीं किया और O को यूज नहीं किया. जिन्होंने पाप किया है बहती गंगा में हाथ धो लीजिए. H2. अब बैलेंस कर लीजिए. 2 of hydrogen, NaCl, so Na2 है, 2 NaCl. This is the reaction. So you can, this we will again study in metals and non-metals. No, acid, bases and salts में ये पढ़ेंगे. Metals and non-metals में भी ये रिएक्शन पढ़ेंगे. घबराने का नहीं है. अभी एक एक बार करके लिखेंगे, सब अपने आप याद होना शुरू हो जाएगा. Reacts with dilute hydrochloric acid to form sodium chloride, plus carbon dioxide and gives water. So I think evolution of gas, the way we have covered, has been extremely detailed. इतना सा तो बोलेगा एनसीईआरटी में इतना है, उसमें इतना है. हम कितने स्लाइड में आ गए? 6 स्लाइड में आ गए हैं. And this big. So before we end the class, a quick recap of whatever we studied. We studied about the first characteristic of a reaction, which is evolution of gas. If we see effervescence or evolution of a gas, we are 100% sure that a chemical reaction is taking place. The two gases that will be haunting us in this year are hydrogen and carbon dioxide. Hydrogen as a gas is tested by bringing a lighted matchstick in the vicinity of the test tube from where it is being evolved, and it will burn with a pop sound, right? Examples of hydrogen being released is metals react with acids, let dilute hydrochloric acid to produce metal salt and releases hydrogen. Make sure that the metal should be more reactive or upper in the series of reactivity series than hydrogen. So we have understood that. The next was about carbon dioxide. The basic test of carbon dioxide is carbon dioxide turns lime water milky. In order to understand the entire thing, we should first take calcium carbonate, undergo a little bit of thermal decomposition to give you calcium oxide and carbon dioxide. So carbon dioxide is produced. Now take that carbon dioxide and keep it aside. Take the calcium oxide, react it with water, it forms calcium hydroxide, which is known as slaked lime. Filter it out. It gives you clear water, which is known as lime water. Bubble the carbon dioxide on that lime water slowly, and you see that the lime water starts getting cloudy. It's a formation of an precipitate, not invisible, visible precipitate, which is calcium carbonate and water. However, if you do more bubbling, which is called regasification, if you pass excess CO2, then calcium carbonate changes to calcium bicarbonate, and calcium bicarbonate is a soluble salt, very much present in your house in the form of baking powder. बेकिंग में भी, बाइकार्बोनेट में भी. इसीलिए कैल्शियम बाइकार्बोनेट is not baking soda, sodium bicarbonate is baking soda. So if sodium bicarbonate is soluble, calcium bicarbonate भी soluble होगा. है तो bicarbonate आया नहीं ना, समझ में आया? So it gets soluble. और bicarbonate क्या होता है? HCO3. कार्बोनेट क्या होता है? CO3. CO3 होता है 2 माइनस. सेकेंड ग्रुप के साथ रिएक्ट करेगा तो एलिमेंट CO3, MgCO3, CaCO3. फर्स्ट ग्रुप के साथ रिएक्ट करेगा तो एलिमेंट 2CO3,
Na2CO3, Li2CO3. Very easy. आज का रंगारंग. Yes sir. What is H2? H2 is hydrogen beta, hydrogen gas. You are hanging. आज का भी neighbors internet. H2CO3. H2CO3 is carbonic acid, the acid present in the Coke bottle when you just shake Coke and you open it. H2CO3 is carbonic acid. When there is a delay, do write it. यूशा पैकिंग में एकदम एक्सपर्ट है, पहले ही पैक कर. चलिए आज का रंगारंग कार्यक्रम यही समाप्त होता है. भाई साहब आपका वक्त हो गया है. यू कैन हैव योर वाटर, द टाइम इज ओके, एंड क्लोजिंग द call now.